Good evening and Jai Swaminarayan to all students. We are going to start chapter 3 whose name is Delhi Sultanate. Do you know there is a minar in Delhi Sultanate that was built by so many kings? It was 5-storied building. The first floor was built by Qutbuddin Aibak and raised by Iltutmish around 1229. Over the years, it was damaged by lightning and earthquake and repaired by Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq and Ibrahim Lodi. Qutbuddin Aibak, Iltutmish and Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq and Ibrahim Lodi. Means 5 kings are involved in the construction of this building. Okay. Next, we have to know about the Delhi, how Delhi city was built. Okay, Delhi has a glorious past. It has a glorious past. The reason and around it was inhabited by hominids nearly 1 lakh years ago. Several Stone Age sites have been discovered in the city. Hunter-gatherers roam in the forest hills here. A number of sites from the late of Harappan periods have also been discovered in the adjoining areas. Delhi also holds an important place in Mahabharata, where it is referred to as Indraprasth, the capital of Pandavas. The city was also a part of Kuru Mahajanpadas. According to Buddhist document, the capital of this Mahajanpadas was Indraprasth, which is known as Indraprasth at the time of Pandavas. In 8th century, Tomar Rajput king of Rajasthan made Delhi their southern outpost, whose name was Anang Pal Tomar. First, built the first city of Delhi called Lal Kot. In present-day Mehrauli area, the Tomars were succeeded by Chauhan Rajput. Their most prominent rules being Prithviraj Chauhan. Let us read about other cities of Delhi and the rules who founded them. Okay, before starting the foundation of Delhi Sultanate, we have to discuss about the first topic, how Delhi. Okay, means ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली बहुत 1 लाख साल से भी पुरानी कंट्री है और जिसकी खोज सेवरल स्टोन एज, जो स्टोन एज कहा जाता है, उस टाइम इसका खोज किया गया था. उस टाइम यहाँ पे बहुत सारे हंटर्स गैदर हुए थे, फॉरेस्ट जो जंगल में जाकर के अपना गुजारन चलाते थे. अ नंबर ऑफ साइट्स लेट हरप्पन पीरियड हैज़ बीन डिस्कवर्ड. हरप्पन पीरियड के टाइम में बहुत सारे सिटीज़ डिस्कवर हुए थे. ठीक है, महाभारत के समय पे भी दिल्ली मौजूद थी, जिसका दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. पांडवों के समय में दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी. कुरु महाजनपदास, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट, द कैपिटल ऑफ महाजनपदास was Indrapat. The name was known as Indrapat now, which sound like, जिसका उच्चारण इंद्रप्रस्थ के जैसा होता था. 800 साल पहले तोमर राजपूत किंग, राजस्थान के राजा तोमर राजपूत ने दिल्ली को अपना साउदर्न पोस्ट, दिल्ली अपनी राजधानी का साउदर्न पोस्ट उन्होंने घोषित किया था. उस वक्त राजा थे अनंग पाल तोमर फर्स्ट, जिन्होंने दिल्ली शहर को लाल कोट का नाम दिया था. इन द प्रेजेंट डे और आज के समय में महरौली एरिया में लालकोट जगह स्थित है. द तोमर वॉज सक्सीडेड बाय चौहान राजपूत. 12th century, Tomar Rajput, king of Rajasthan, made Delhi their southern outpost, whose name was Anang Pal Tomar. First, built the first city of Delhi called Lal Kot. In present-day Mehrauli area में लालकोट जगह स्थित है.
ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो वहाँ चौहान डेंसिटी के राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने दिल्ली शहर को अपना मुख्य शहर घोषित किया था। चलिए अब हम आगे रीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एज वी रीड बिफोर, जैसा कि कहा जाता है कि हम लोगों ने पहले भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था। उस कैपिटल वाज अजमेर, जिनका कैपिटल अजमेर था, लेकिन दिल्ली को उन्होंने अपना मुख्य शहर, इम्पोर्टेंट सिटी इन हिज किंगडम, दिल्ली को अपना राजधानी का मुख्य शहर घोषित किया था। तुर्किश एम्पायर वॉज ट्राइंग टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस, जो तुर्किश उस समय जो तुर्किश साम्राज्य के लोग थे वो अपना एम्पायर फैलाने की कोशिश करते थे। तुर्किश एम्पायर के राजा, जिनका नाम था मोहम्मद गौरी, he attacked so many times at Prithviraj Chauhan. In the second battle of Taran 1192, they defeated Prithviraj Chauhan. पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हरा दिया और टर्किश रूल अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश, टर्किश रूल को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो दिल्ली अपने अंडर में ले ले। मोहम्मद गौरी with his military generals was able to extend the Turkish empire to other part of India. टर्किश एम्पायर को विस्तारित करने के लिए मोहम्मद गौरी ने बहुत प्रयास किया और उन्होंने इसमें बहुत सफलता भी पाई। द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत रिजाइडेड ड्यूरिंग द पीरियड 1206 एंड 1526 CE, सेंचुरी पहले 1200 से 1500 साल तक उन्होंने, ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पैनिंग ओवर मोर देन 300 years, 5 ruling dynasty dominated the political scenes of Indian subcontinent. These dynasties were divided into 5 dynasty. First dynasty was slave or Mamluk kings. It was 1206 to 1290 century. Second dynasty was named Khilji dynasty. It was 1290. It was started from 1290 to 20 century. Third was Tughlaq dynasty. It was started from 3020 to 14 century. Sayyid dynasty. It was started from 1414 to 1451 century. Lodi dynasty. It was started 1451 to 1526 century. The second, third and fourth, fifth cities of Delhi were constructed under the Delhi Sultanate. The second, third, fourth, fifth cities of Delhi means दिल्ली शहर में, जो दिल्ली शहर है उसमें भी और भी बहुत सारे शहर बनाए गए दिल्ली सल्तनत के समय में। Okay, let us discuss about the slave dynasty. The Turkish ruler had especially chosen slave who were trained to excel both in military and intellectual areas. These slaves often rose up the political and military ranks to become rulers, who was known as Mamluk, means a slave. Mamluk means a slave whose parents were not slave. The Delhi Sultanates Qutb-ud-Din Aibak, Iltutmish and Balban were once slave. The name which we read just now, the name was Qutb-ud-Din Aibak, Iltutmish and Balban were a slave. Slave means ऐसा कहा जाता है, slave means like a servant who work for his master. And his master was मोहम्मद गौरी. इनके जो मालिक थे वो मोहम्मद गौरी थे, जिन्होंने इन लोगों को अपना स्लेव बना कर रखा था और अपनी फ़ौज में इनका इस्तेमाल करते थे। पहले के ज़माने में कैसा होता था कि स्लेव जो ग़ुलाम है वो ख़रीदे और बेचे जाते थे। तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन
मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे. एज मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव एन हेयर, हिज टेरिटरीज वॉज occupied by his governors. Gauri's Indian territories were occupied by Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak was a slave of Muhammad Gauri, hence the dynasty founded by him is known as slave or Mamluk dynasty. With the establishment of dynasty in Delhi, the Turkish ruler began in India, as Delhi was the center of all the political, cultural, economics and social changes in the Indian subcontinent. The period is called the period of Delhi Sultanate. Qutbuddin Aibak, as mentioned before, founded the slave dynasty in 1206. He initially ruled from Lahore. ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो लाहौर से स्टार्ट हुआ था, एंड लेटर बाद में उन्होंने दिल्ली ही शिफ्टेड टू दिल्ली. ही वॉज अ काइंड हार्टेड रूलर एंड वॉज नोन एज लक बक्स और द गिवर ऑफ लाख. He initiated the construction of Qutub Minar in Delhi and constructed the अढ़ाई दिन का झोपड़ा mosque in Ajmer. Qutbuddin Aibak died while playing polo. कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड था. काइंड हार्टेड मीन्स बहुत ही दयालु था, जिसकी वजह से उसका नाम लाख बक्स पड़ा. और ही गिव लाख ऑफ रुपीज़ एंड डोनेट लाख ऑफ रुपीज़ फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. he start to constructed Qutub Minar in Delhi and also constructed ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद. ढाई दिन का झोपड़ा नाम का मस्जिद इन्होंने अजमेर में भी बनाया. कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड. कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई. ओके स्टूडेंट, दिल्ली के बारे में हम लोग बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली हमारे भारतवर्ष का हृदय के रूप में जाना जाता है. मेन सेंटर है जहाँ से सभी तरह के व्यवसाय और सभी तरह के पॉलिटिकल, कल्चरल और आर्थिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है. आज के समय में भी दिल्ली ही को ही केंद्र माना गया. दिल्ली इज़ द सेंटर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम वेयर एवरी थिंग्स is controlled. As you know, today Delhi is the center. Delhi is the capital of our country, and from where everything is controlled by our government. ओके, स्लेव डेंसिटी की बात करें तो स्लेव डेंसिटी में सैम उद दिन इल्तुतमिश नाम के जो राजा है वो भी स्लेव डेंसिटी की ही देन है. इल्तुतमिश इज़ कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश रियल फाउंडर हैं दिल्ली सल्तनत के. इनिशियली हिज एसेंट टू थ्रोन वाज चेंज्ड बाय आराम शाह. Qutbuddin Aibak's son Iltutmish was the son-in-law and slave of Aibak. Qutbuddin Aibak was impressed by the Iltutmish and administrative ability and was yet set free. Iltutmish completed the construction of Qutub Minar and building the second, third and fourth floor. He organized a group of 40 nobles. तुर्कान ए चहलगानी. उन्होंने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया. किसने बनाया? इल्तुतमिश ने. ठीक है, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया तुर्कान ए चहलगामी. द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सल्तनत. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सल्तनत
means administrator work can be done, or everything which is held in Delhi, it will be done by these 40 peoples जिनका नाम चहलगामी दिया गया था. ही डिक्लेयर वो क्या करते थे, चहलगामी जो थे वो क्या करते थे, दिल्ली सल्तनत के अंदर इधर उधर घूम घाम करके दिल्ली सल्तनत का सर्वे करते थे और उसकी जानकारी राजा को देते थे. राजा उस पर से डिसीजन लेते थे कि उनको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है. यहाँ तक कि वो जो किसान थे, जो लोग खेती करते थे, उनकी देखरेख भी करते थे और किसानों से कितनी खेती हो रही है, कहाँ पे कितना कर लेना चाहिए, कर मीन्स टैक्स, वो सब एडमिनिस्ट्रेटर जो ये चहलगामी ग्रुप थे वो डिसाइड करते थे. चहलगामी ग्रुप में से भी कुछ लोग ऐसे थे जो, जैसे कहा जाता है ना कि गद्दार होते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो राजा के अच्छाई के बारे में भी लिखते थे और बुराई के बारे में भी लिखते थे. अच्छाई के बारे में इस तरह से लिखते थे, अगर राजा ने अच्छा काम किया तो वो अच्छा लिखेंगे, और बुरा काम किया तो बुरा काम को भी वो लोग इस तरह से घुमा फिरा के लिखते थे कि राजा को बुरा न लगे. इल्तुतमिश के बाद स्लेव डेंसिटी से रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान was the first woman ruler of Delhi as well as India. She was a wise, prudent, generous and an efficient leader after the death of his eldest son Iltutmish. Iltutmish did not find his other sons as efficient as the daughter Rajia. रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी और इल्तुतमिश के एक और लड़के थे जिनको उन्होंने राजा बनाने के लायक नहीं समझा और उन्होंने रजिया सुल्तान को गद्दी सौंप दी. रजिया सुल्तान सभी तरह से अच्छी थी और उन्होंने मतलब शासनकाल को संभालने के लिए व्यवस्थित थे, तो उन्होंने रजिया सुल्तान को अपनी गद्दी सौंप दी. He chose Rajia Sultan as his successor, but the noble were disappointed. लेकिन ये जो चहलगामी में जो 40 लोग थे, वो लोग ऐसा मानते थे कि लड़की को या फिर किसी औरत को गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए. उस समय में भी लोग औरतों के आगे आने पर या किसी काम के करने पर ऑब्जेक्शन लगाते थे और ऐसा सभी शासनकाल में चला ही आ रहा है. A male-dominated society allow a woman to rule, does not allow to rule a woman. Hence, after the death of Iltutmish, they chose Rukn-ud-Din Firoz Shah, Razia's brother, as a successor. उन्होंने रजिया सुल्तान को गद्दी पर से, वो 40 लोग जो चहलगामी के जो मेंबर्स थे, वो 40 लोगों ने मिल करके रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया और उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बिठा दिया. रुकनुद्दीन was an efficient ruler who spent his time exploring and enjoying the fortune of the royal treasury. Rajia faced many challenges, especially opposition from Chahilgami. She captured the throne with support of the followers. Rajia ruled for a short period, for 4 years. Her close association with Abyssinian slave Yakut was used as excuse for revolts against her. Rajia attempted to curb the rebellion failed and she captured the Bhatinda and Altunia. The governor of Bhatinda, she married Altunia and freed herself, but a few months later both were killed in their effort of regain her throne. Razia's death was followed by the political chaos, and uncertainly Brahm and Masud
The successor of Iltutmish occupied the throne in quick succession but were removed or killed by the nobility. Eventually, Nasir ud-Din Mahmud, the younger son of Iltutmish, ascended the throne. He totally surrendered to the nobility. One of his noble, Balban, became the prime minister. Balban was all power in the state. What's happened in this paragraph? By the Chehalgami, Razia Sultan was escaped from the throne, but again Razia Sultan tried to get her throne with a slave, Abay San Yakut. For the revolts against her, Razia attempt to curb rebellion failed. Okay, after that she married with the king of Bhatinda, the governor of Bhatinda. She married Altunia and free herself, but after a few months, she and her husband Altunia again attack to get her throne. But in this battle, Razia Sultan and her husband both were killed. And finally, Balban Khan becomes the prime minister of the state and all the powers he had. After Balban Khan, Ghiauddin Balban was the name of Balban Khan. After Nasiruddin died, Balban becomes the undisputed Sultan of Delhi. Why? Because he has power. So, with the help of his power, he appointed as Sultan of Delhi without undisputed. Not a single person was able to speak against Balban Khan. He adopted the policy of blood and iron. To suppress the internal and external opposition against him, the policy implied a harsh and strict approach towards enemies and administration. There was no hesitation in shedding blood in order to establish the Sultan supremacy. He established an efficient spy system and awarded severe punishment even for petty issue. He banned social meeting and matrimonial alliance among nobles. He introduced Persian practices such as Sizda and Paibosi. To elevate the position of Sultan, Sizda was the practice of kneeling down before the Sultan, and Paibosi was the practice of kissing the feet. He cleared forest around Delhi to curb Mewadis, who often plundered Delhi. He broke the power of Chehalgani nobles. He also constructed few forts and western borders to save Delhi from Mughal raids. Okay. गयासुद्दीन बलबन ने का जो थे उन्होंने मुख्य काम क्या किया जब वो गद्दी पे बैठे तो उन्होंने मुख्य काम क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो चहलगनी के जो 40 मेंबर थे उनको उन्होंने ब्रेकअप किया, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद
जो पर्शियन प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिजदा एंड पायवोसी। सिजदा एंड पायवोसी में क्या होता है कि राजा के कदम को चूमना, राजा को सजदा करना, सलाम करना और उनकी कदम को चूमने की प्रथा इन्होंने चालू की। जो ऐसा नहीं करता था उनको वो पनिशमेंट देते थे। और अपने सल्तनत को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रूएल काम किए, मतलब निर्दयी कार्य किए। जैसे कि अगर कोई उनकी बातों को नहीं मानता था या कोई उनकी हुक्म को नहीं मानता था तो वो सीधा उनका मर्डर कर दिया करते थे या फिर उनको मार दिया जाता था। और एक्सटर्नल ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं दे, मतलब बाहरी आक्रमण उनके राज्य में न हो, इसलिए उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर बनवाए। ही कंस्ट्रक्टेड फ्यू फोर्ट्स, बहुत सारे किले बनवाए, बहुत सारे बॉर्डर्स बनवाए, जिनकी वजह से मुग़ल एम्पायर उन पे मंगोल उनके ऊपर आक्रमण न कर सके। इसके बाद आया खिलजी डेंसिटी आफ्टर बर्बन डेंसिटी के बाद में खिलजी डेंसिटी। हिज सक्सेसर प्रूव्ड टू बी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। बलबन's grandson was put to death by his own noble। बलबन की डेथ के बाद उनके ग्रैंडसन को गद्दी पे बिठा दिया गया। वन ऑफ whom was from खिलजी tribes, whose name was Firoz Shah। The Khilji were of Turkish origin but were settled in Afghanistan। Firoz Shah took the name of Jalaluddin on ascending the throne। फिरोज शाह का नेम जलालुद्दीन, पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। आफ्टर किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डेंसिटी, जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डेंसिटी। जलालुद्दीन खिलजी averted an invasion of the Mongol in 1291। It was during his reign that Alauddin Khilji, his nephew, defeated the ruler of Devagiri। It was the first successful expedition of Sultanate ruler in Deccan। He was murdered by his nephew later। इसमें ऐसा देखा जाता है जितने भी सुल्तान थे ना, सभी सुल्तानों को उनके अपने लोगों ने ही उनका खात्मा कर दिया, उनको मर्डर करके उनकी गद्दी पे बैठ गया। यहाँ हमने पढ़ा कि जलालुद्दीन खिलजी जो फिरोज शाह खिलजी थे, उनका मर्डर उनके नेफ्यू ने कर दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में उन्होंने अपने नाम का सिक्का बनवाया। कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द reign of Jalaluddin Khilji। These coins were minted। जलालुद्दीन खिलजी बहुत लंबे समय तक गद्दी पे नहीं रहे। उसके बाद उनके नेफ्यू ने उनके मर्डर करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ascended the throne in 1296। His reign was known as expansion of the अपने राज्यों को फैलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी he introduced market control policy। ठीक है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने लागू किया। टू चेक द रेश ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड जो बाज़ार में बिकने वाले जो सामान है, उन सभी सामानों की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू किया। टू मेंटेन द लार्ज आर्मी विदाउट इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द पीपल, he increased लैंड रेवेन्यू। अपने सैनिकों का खर्चा चलाने के लिए इन्होंने लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया। इन दाऊब रीजन में 50% बाई 50% ही रिपेयर्ड द फोर्ट्स रिपेयर किए। 50% जो फोर्ट्स थे जिनको नुकसान हो गया था उनको इन्होंने रिपेयर करवाया। विच ले ऑन द रोड of Mongols and also built a new fort at strategic places। He constructed
द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सेकेंड सिटी इन्होंने बनवाई। द सिटी ऑफ सिरी, जिसका नाम सिटी ऑफ सिरी रखा गया। मंगोल अटैक्ड द सिटी एंड वेयर डिफीटेड, मंगोल डेंसिटी के जो लोग थे उन्होंने उस सिटी पे आक्रमण किया और उसको अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया। इट इज़ बिलीव दैट द अरेस्टेड मंगोल्स हेड वेयर क्रस्ड बाय एलिफेंट, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी को हरा नहीं पाए। मंगोल के द्वारा सेकेंड दिल्ली सिटी के ऊपर जब आक्रमण किया गया तो मंगोल्स के बहुत सारे सैनिक को इन लोगों ने अरेस्ट कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अरेस्ट किया। और ऐसा कहा जाता है कि मंगोल्स के जो सिपाही अरेस्ट किए जाते थे उनको ये लोग हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देते थे। सिंस हेड इज कॉल्ड सर, अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही जो भी डिपार्टमेंट के हेड होते थे उनको वो लोग सर कह के बुलाते थे, सर। इन द लोकल लैंग्वेज हिज फोर्ट कैम टू बी नो एज श्री फोर्ट। दिल्ली का जो दूसरा शहर बनाया गया जिनका नाम इन्होंने श्री रखा था, श्री सिटी, सिटी ऑफ श्री, उनको इन्होंने किले में तब्दील कर दिया। ही ऑल्सो commissioned the Alai Darwaja, the gateway of कुतुब मीनार। ठीक है, इन्होंने एक फोर्ट और बनवाया जिसका नाम इन्होंने रखा अलाई दरवाज़ा, जो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बहुत सारे राजा हैं, जैसे कि मुबारक शाह खिलजी, तुगलक डेंसिटी was established and गियासुद्दीन तुगलक विद द एंड ऑफ खिलजी डेंसिटी की साम्राज्य के समाप्ति के बाद अ न्यू रूलर गियासुद्दीन तुगलक रोज पावर एंड एस्टेब्लिश तुगलक डेंसिटी। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक, जिनका नाम गाजी मलिक वॉज द जनरल, गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक वॉज द जनरल ऑफ मुबारक शाह खिलजी आर्मी। He avenged the death of his master by killing the Khurshid Shah and became the Sultanate. He adopted the name Ghiyasuddin Tughlaq and founded the Tughlaq dynasty. He annexed and integrated Warangal into Delhi Sultanate. In his short region of 5 years, he not only expanded Delhi Sultanate but also consolidated it. He built third city of Delhi called Tughlaqabad. Ghiyasuddin was capable commander. He strengthened the defense of northwest frontier against the Mongol invaders. He invaded Bengal and occupied a large part of it. He ended corruption in the administration and increased the area under the cultivation. It is illegal that he was killed at Bisat of his son Muhammad bin Tughlaq in 1324. ओके, गियासुद्दीन तुगलक, जिनका नाम गाजी मलिक था, उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक नाम को एडॉप्ट किया। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत का बदला लेने के लिए खराउ शाह से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का मौत का बदला लिया और उनको मार करके गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठ गया और इन्होंने अपने शासनकाल में बंगाल तक अपने शासन को बढ़ाया और इन्होंने दिल्ली के तीसरी शहर की स्थापना की, जिनका नाम इन्होंने रखा तुगलकाबाद। ठीक है,
ये इतने कैपेबल कमांडर थे कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले जितने भी फ्रॉड या फिर को इन्होंने नष्ट किया, ठीक है, करप्शन को, फ्रॉड और करप्शन को नष्ट किया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन और को सुचारू रूप से चलाया। और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया कल्टीवेशन पे। कल्टीवेशन मीन्स उपज पे, ठीक है। कल्टीवेशन मीन्स जो फसल हम लोग किसान लोग उगाते हैं उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। और alleged that he was killed at Bisad of his son मोहम्मद बिन तुगलक इन 1324 में इनकी डेथ हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज लर्नड एंड accomplished लवर ऑफ फाइन आर्ट्स। मोहम्मद बिन तुगलक फाइन आर्ट्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ही इज़ नोन एज द वेरियस एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने करवाए। वेयर अहेड ऑफ हिज टाइम, अपने शासनकाल में। देयरफॉर ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसीज ही कॉल्ड मिक्सचर एंड एट द ऑपोजिट बाय हिस्टोरियंस, अबाउट विच यू विल रीड लेटर इन द चैप्टर। ही डाइड 1351 आफ्टर द nominating his cousin Firoz Shah as next ruler. मोहम्मद बिन तुगलक also built the fourth city of Delhi. इन्होंने दिल्ली की चौथे शहर को भी बनवाया, जिनका नाम इन्होंने रखा जहांपना। इब्न बतूता मोरोकन ट्रैवलर, इब्न बतूता नाम के एक मोरोकन ट्रैवलर थे जो दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। He described how a person who wanted to visit the Sultan had to pass through 3 lofty, heavily guarded gates. He then entered the court of 1,000 pillars, which was a huge hall decorated with costly materials. This was the place where the Sultan held his public court. The Sultan's birthday and Nowruz, the Persian New Year, were both celebrated with great pomp and splendor. Okay. इब्न बतूता नाम के मोरकन ट्रैवलर्स जो दिल्ली आए थे, उन्होंने यह बताया, अपनी जो बुक उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने बताया कि किंग से मिलने के लिए, सुल्तान से मिलने के लिए बहुत he had to pass 340 heavily guarded gates, मतलब 3 lofty, 3 बहुत बड़े बड़े गेट्स जिनमें जिसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसे गेट से उनको गुजरना पड़ता था। उसके बाद भी वो लोग सुल्तान के पास नहीं पहुंच पाते थे। सुल्तान के कोर्ट में पहुंचने के लिए कोर्ट हैव 1,000 पिलर्स, हज़ारों पिलर्स थे। विच वॉज ह्यूज हॉल डेकोरेटेड, जो जिस हॉल में ये पिलर्स थे वो हॉल बहुत ही डेकोरेटेड विथ कॉस्टली मटेरियल्स, बहुत ही महंगे धातुओं से बने हुए थे। दिस वॉज द प्लेस वेयर सुल्तान, ये वो प्लेस था जहाँ पे सुल्तान अपना कोर्ट, सुल्तान अपनी सभा को बुलाते थे, सुल्तान अपनी सभा अरेंज करते थे, मीन्स लोगों से मिलते थे। सुल्तान के बर्थडे और पर्शियंस के नवरोज पर्व दोनों एक ही साथ मनाए जाते हैं विथ ग्रेट पंप ऑफ स्प्लेंडर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। We will discuss in next chapter after Firoz Shah Tughlaq, Sayyid density and Lodi density. In next chapter we will discuss about them. Okay, thank you for today.